तो वेलकम टू आवर चैनल द इंडिया रीड्स। हाँ जी गाइस, तो इन माय लास्ट वीडियो वी हैव रिवाइज्ड 1 to 6 टेंसेस. नाउ इन माय दिस वीडियो वी विल रिवाइज नेक्स्ट टेंसेस मींस 7 to 12 टेंसेस. तो सी फॉर योर रिवीजन ओनली आई विल प्रोवाइड यू चार्ट. तो सी चार्ट. हाँ जी, तो फ्रेंड्स, firstly I want to explain each and everything related to tenses. Like firstly we have done present indefinite, past indefinite, future indefinite, or as well as you can know these tenses like simple present, simple past and simple future. After that we have done present continuous, past continuous and future continuous. As well as you know that continuous is also known as progressive, means we have done present progressive, past progressive and future progressive. So in my last video we have revised 6 tenses. Now we are going to revise next 6 tenses. So next tense is present perfect tense, present perfect tense. Next is past perfect tense, and next is future perfect tense. Okay guys, so it's your 7th tense, it's your 8th tense and it's your 9th tense. Okay guys, present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Okay, and next is it's a present perfect continuous tense. Present perfect continuous, it's a past perfect continuous and it's a future perfect continuous. Okay guys, it's a present perfect, it's a past perfect and it's a future perfect. Last 3 tenses are present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Here tenses are over. Okay, so guys, perhaps you have kept this thing in your mind that firstly we will do it's positive, it's also positive and it's also positive. So perhaps guys you have kept these things in your mind that what were the words through which you will come to know that it's a present perfect, it's a past perfect and it's a future perfect. You know that हर टाइम मैं आपको एवरी टाइम रेको के लिए वर्ड्स देती हूँ जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है. तो इसके रेको के लिए गाइस मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं. ऐसे ही पास्ट परफेक्ट की रेको के लिए मैंने आपको वर्ड बताए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे. और फ्यूचर परफेक्ट की रेको के लिए मैंने आपको वर्ड बताए थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. अंडरस्टूड गाइस? हाँ जी, तो इसकी रेको के लिए कौन से वर्ड है? चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं. ओके गाइस, चुका है, चुकी है, चुके हैं. इसकी रेको के लिए वर्ड्स हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे. ओके, तो इसकी रेको के लिए वर्ड हैं चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी और गाइस कौन से वर्ड हैं? चुके होंगे. हाँ जी, तो कौन से वर्ड हो गए? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. तो ये रेको के लिए वर्ड है. One thing more guys, always kept this thing in your mind that in any perfect tense always use third verb. Keep this thing in your mind that always
verb in perfect tense. Okay guys, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करेंगे हैज, हैव प्लस थर्ड वर्ब. हाँ जी गाइस, as you know that with the singular things like he, she, it, any name, with the singular things we will use has, and with plural things like I, we, you, they, we will use have and plus third verb. But here whether it's a singular or it's plural, always use had plus third verb. And in this tense we will use will have, shall have, will have, shall have plus third verb. As you know that, now you know this thing very well. I have explained so many times that with I and we only use shall have, and with others use will have. But if you don't want to use shall have, means if you want to ignore shall, then with all things, all with all subject things you can use will have. Okay guys? हाँ जी, तो जैसे कि इसकी एग्जाम्पल आपको देती हूँ, वह अपना पाठ याद कर चुका है. ओके, वह अपना पाठ याद कर चुका है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही, है ना. वह अपना पाठ याद कर चुका है, ही. तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? हैज, और प्लूरल के साथ क्या यूज होगा? हैव. तो हम क्या यूज करेंगे? ही हैज. वह अपना पाठ याद कर चुका है, तो याद करने की इंग्लिश क्या होगी? लर्न. तो इसकी थर्ड वर्ब क्या होती है? लर्न, लर्नड, लर्न. ही हैज लर्नड. वह अपना पाठ याद कर चुका है. He has learned his lesson. Guys, I want to tell you one thing just to increase your knowledge. Guys, if you want to speak English, if you want to write English, if you want to read English, means if you want to speak English, then you should must have knowledge about verbs. तो guys, आप लोग सभी verbs को अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको verbs की नॉलेज हो और आप प्रॉपर इंग्लिश लिख भी पाएं और प्रॉपर इंग्लिश बोल भी पाएं. ओके, तो वह अपना पाठ याद कर चुका है. He has learned his lesson. तो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. वह अपना पाठ याद कर चुका था, या चलो हम प्लूरल में ले लेते हैं. वह अपना पाठ याद कर चुके थे. ज्यादा जने हो गए. अगर एक पर्सन है तो हम ही लगाएंगे, अगर ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे? दे. वह अपना पाठ याद कर चुके थे. दे. Whether it's singular or it's plural, always use had. They had learned. They had learned अपना पाठ, their lesson. अगर सिंगुलर है तो हमने क्या यूज किया? his lesson. अगर प्लूरल है तो हमने यूज क्या किया? their lesson. ओके गाइस, तो मैंने एक बार आपको ये डिफरेंस भी बताया था. its pronunciation is their and its pronunciation is there. Okay guys, it's known as their and it's known as there. Okay, हाँ जी, तो वह अपना पाठ याद कर चुका है. वह अपना पाठ याद कर चुके थे. वह अपना पाठ याद कर चुका होगा. वह अपना पाठ याद कर चुका होगा. ही के साथ क्या यूज करेंगे? will have. He will have learned. He will have learned his lesson. हाँ जी गाइस, तो लेट्स सी डिफरेंस. यहाँ पर देखो हमने थर्ड वर्ब यूज की, यहाँ पर भी थर्ड वर्ब यूज की, यहाँ पर भी थर्ड वर्ब यूज की. ओके गाइस, तो डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पर हमने यूज किया हैज हैव, मीन्स ये सिंगुलर था तो हमने हैज लगाया. अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो हम क्या यूज करते? हैव. यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वेदर इट्स सिंगुलर और इट्स प्लूरल, तो हमने क्या यूज किया? हैड. और यहाँ पर हमने ही मतलब सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगाना है और बाकी सभी के साथ विल लगाना है, तो हमने क्या लगाया? ही विल हैव. अदरवाइज वर्ब विल रिमेन सेम बिकॉज इट्स अ परफेक्ट टेंस. ओके गाइस, इट्स जस्ट पॉजिटिव टाइप. नेक्स्ट इज here we
we will also discuss about positive and positive. हाँ जी गाइस, तो इसकी रेखों के लिए क्या वर्ड है? से रहा है, से रहे हैं, से रहा है, से रही है. ओके गाइस, से रहा है, से रही है, से रहे हैं. तो यहाँ पर क्या हो गया? से रहा था, से रही थी, से रही थी, से रहे थे. ओके गाइस, से रहा था, से रही थी, से रहे थे. तो इसमें क्या हो गया? से रहा होगा, से रही होगी एंड से रहे होंगे. ओके गाइस, हाँ जी. तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट with any continuous always use first verb plus ing. So according to continuous rule we will follow here first verb plus ing, here saying first verb plus ing, here also saying first verb plus ing. तो guys यहाँ पर only हम यूज करें has have, but यहाँ पर हम यूज करेंगे has been, have been plus no third verb because it was perfect tense and it's a continuous tense. So has been, have been plus first verb plus ing. So here had been plus first verb plus ing. So here we will use will have been, हाँ जी, shall have been plus first verb plus ing. हाँ जी guys, rules will remain same, means to say with a singular thing like he, she, it and name. With a singular thing we will use has been, with plural we will use have been. Here whether it's singular or it's plural always use had been. With I and we only we can use shall have been, and with others we will use will have been. Okay. But if you want to ignore shall, then with all things, with all subject things, you can use will have been. Okay guys? तो इसमें guys मैंने आपको 2 words बताए थे. मैंने आपको बोला था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, उसमें हम क्या यूज करेंगे? सिंस और फोर. इसमें हम क्या यूज करेंगे? सेम, सिंस और फोर. Since and for, and here also same thing हम यूज करेंगे since और for. But guys वैसे तो मैंने आपके 12 के 12 टेंसेस की एक अलग वीडियो बना रखी है. मेरी 12 वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे द इंडिया रीड्स पर मिलेंगी. बट गाइस अगर आप ये 3 टेंसेस को थोड़ा डीपली जाके स्टडी करना चाहते हो तो हमारे चैनल द इंडिया रीड्स पर मेरी सेपरेट वीडियोस पड़ी हैं. तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट कीजिए द इंडिया रीड्स पे, और मेरी अलग अलग वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप वहाँ से उठाकर डीप में जाके वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो. ओके गाइस, हाँ जी. तो इसकी एग्जाम्पल देती हूँ आपको. मैंने क्या कहा? से रहा है, से रहे हैं, से रही है. ओके, तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ. सुबह से बारिश हो रही है. सुबह से बारिश हो रही है. हाँ जी. तो सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, इसमें हम सब्जेक्ट क्या अप्लाई करेंगे? इट. सुबह से बारिश हो रही है मीन सुबह से वर्षा हो रही है, तो हम सब्जेक्ट कौन सा अप्लाई करेंगे? इट. हाँ जी. तो सिंगल के साथ हमने यूज करना है हैज बीन और प्लूरल के साथ हमने यूज करना है हैव बीन. तो इट हैज बीन फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी. फर्स्ट वर्ब इज रेन,
ing. ओके, इट हैज बीन रेनिंग. अब मैंने बच्चे आपको बताया था कि अगर निश्चित टाइम है, फिक्स्ड टाइम है, तो वी विल यूज सिंस. अगर फिक्स्ड टाइम नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर. मैंने बताया था ना कि हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर यूज करते हैं. लाइक अगर हमें पता है कि ये काम मॉर्निंग से चल रहा है ना, ये काम येस्टरडे से चल रहा है, ये बात मंडे लास्ट की है, ये बात 1990 से लेके 1995 तक की है, इट मीन्स इट्स अ फिक्स्ड टाइम. तो वी विल यूज सिंस. इफ यू डोंट नो दैट फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर, लाइक वो कहें कि वह 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो कौन से 5 साल, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? फॉर. ओके, तो ये सिंस और फॉर के जो रूल्स हैं वो सभी टेंसेस में, तीनों में मीन्स सेम रहेंगे. तो मैंने अब यहाँ पे क्या टेंस बताया था आपको? सुबह से वर्षा हो रही है. तो इट हमने अप्लाई किया सब्जेक्ट. इट हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या यूज होना है? हैज बीन. तो रेन फर्स्ट वर्ब होगी ing. इट हैज बीन रेनिंग. अब फिक्स्ड टाइम है कि जो बारिश है वो सुबह से हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. वही अब बना लेते हैं. सीता 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही है. वी डोंट नो फ्रॉम विच 5 years, वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी विल यूज फॉर, नॉट सिंस. या तो हमें टाइम बताते ना कि 1990 से लेके 1995 की बात है ना, तो फिर हम क्या यूज कर सकते थे? सिंस. बट सीता 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही है, तो सीता हैज बीन टीचिंग. teach, taught, first verb plus ing. Sita has been teaching in this school. इस स्कूल में ना, Sita has been teaching in this school for 5 years. हाँ जी, सीता इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रही है. हमें नहीं पता कौन से 5 साल, सो हम फॉर यूज कर रहे हैं. सुबह से वर्षा हो रही है, हमें पता है सुबह से हो रही है, तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंस. तो सीता हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years. हाँ जी गाइस, तो यही सेम हम यहाँ पे उठा के लाएंगे. सुबह से वर्षा हो रही थी, तो क्या बन जाएगा? इट हैड बीन raining. It had been raining since morning. तो वही गाइस, कौन सा फर्क आ गया? क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हैज बीन यूज हो रहा है और यहाँ पर हैड बीन यूज हो रहा है. फर्स्ट वर्ब प्लस ing, सिंस, फॉर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम. ओके, तो सीता 5 साल से स्कूल में पढ़ा रही थी. सेम. सीता हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years. ओके गाइस, तो यहाँ पर माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा. चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा होगा, है ना. कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे यही ले लो. सुबह से बारिश हो रही होगी. सुबह से बारिश हो रही होगी. इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. हाँ जी गाइस, तो मैंने क्या कहा था? विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing. बट अकॉर्डिंग टू मी गाइस, ऑलवेज इग्नोर शैल. आप हर एक जगह पे विल अप्लाई करो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा आपको कोई भी टेंस. तो आप हमेशा विल ही यूज करो. बट आपको बता रही हूँ कि अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप आए और वी के साथ यूज कर सकते हो. तो सुबह से बारिश हो रही होगी, है ना. सुबह से वर्षा हो रही होगी. इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है. माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा, तो क्या बन जाएगा? द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, है ना. द गार्डनर will have been, the gardener will have been watering the plants. हाँ जी, मैंने अभी क्या कहा?
मान ली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा। द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। हमें पता है ना सुबह का फिक्स टाइम है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। गाइस एक आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ। मान लो यहाँ पर आ जाता है सपोज, मान ली 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा होगा। अब हमें नहीं पता कि कौन से 2 आवर्स है ना, तो फिर हम सिंस नहीं यूज कर सकते, फिर हमने क्या यूज करना था, फॉर 2 आवर्स। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर आके आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर आकर ओवर होता है। ऑलमोस्ट आपका जो ये 6 के 6 टेंसेज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको आई डोंट थिंक कि आपको कहीं पर भी कोई अभी प्रॉब्लम होगी। बस अब आपको जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की जस्ट हिंट देती हूँ। ओके गाइस, हाँ जी गाइस, सी हाँ जी, कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, जस्ट बताऊंगी हिंट में, क्योंकि आप लोगों को सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो इट्स आर नेगेटिव, नेगेटिव एंड इट्स आर नेगेटिव। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे थे, पॉजिटिव में हैज है प्लस थर्ड वर्ब, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हैज नॉट, हैव नॉट प्लस सेम, which verb we will apply, third verb। तो इंटेरोगेटिव में गाइस, इंटेरोगेटिव which ends with the question mark sign। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज has, have before subject plus third verb, use has, have before subject plus third verb plus question mark at the end। ओके गाइस, तो इसकी नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव में हम यूज कर रहे हैं हैड प्लस थर्ड वर्ब, तो पास्ट के नेगेटिव में हम यूज करेंगे हैज नॉट प्लस थर्ड वर्ब। एंड इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, यूज हैड बिफोर सब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ओके गाइस, तो सेम यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड वर्ब, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड। हाँ जी, चेक गाइस, हैज नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड वर्ब, had not plus third verb, sorry, we are doing only negative, this rule we will apply in interrogative, sorry। हाँ जी, तो had not plus third verb, तो यहाँ पर will not have, shall not have plus third verb, ये हो गया हमारा नेगेटिव।
और यहाँ इंटेरोगेटिव में हमने क्या लिखा, यूज हैज हैव बिफोर सब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड. यूज हैड बिफोर सब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड. तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव में हाँ जी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यूज विल शैल बिफोर सब्जेक्ट, यूज विल शैल बिफोर सब्जेक्ट प्लस हैव आफ्टर सब्जेक्ट प्लस हैव आफ्टर सब्जेक्ट. देखो गाइस ध्यान से सुनो, जो विल शैल है वो हमने सब्जेक्ट से पहले लगाना है, जो हैव है वो हमने सब्जेक्ट के बाद लगाना है, प्लस सेम थर्ड वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड. अंडरस्टूड गाइस? यूज विल शैल बिफोर सब्जेक्ट मींस सब्जेक्ट से पहले सिर्फ विल या शैल लगेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड. तो हियर गाइस नेगेटिव हाँ जी, नेगेटिव. तो इसके नेगेटिव में हम पहले गाइस ये आप देखो कि हम इसमें यूज क्या कर रहे थे, हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी. तो हम इसके नेगेटिव में क्या यूज करेंगे, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing. ओके गाइस, यहाँ पर हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing. ओके, यहाँ पर विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing. ओके गाइस, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing, had not been plus first verb plus ing, will not have been, shall not have been plus first verb plus ing. ये तो गाइस हो गया अपना नेगेटिव. अब आ गया इंटेरोगेटिव. हाँ जी, इंटेरोगेटिव इट्स ऑल्सो इंटेरोगेटिव. हाँ जी गाइस, तो इसमें हम क्या करेंगे, यूज हैज हैव बिफोर सब्जेक्ट प्लस बीन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing प्लस क्वेश्चन मार्क साइन एट द एंड. ओके, यहाँ पर गाइस यूज हैड बिफोर सब्जेक्ट प्लस बीन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ing प्लस क्वेश्चन मार्क साइन एट द एंड. ओके, हियर गाइस यूज will shall before subject plus have been after subject plus first verb plus ing plus question mark at the end. हाँ जी गाइस, प्लीज आई वांट टू एक्सप्लेन जस्ट. यहाँ पर आपने क्या करना है, यूज हैज हैव बिफोर सब्जेक्ट. मैंने क्या बताया कि आपने क्या करना है, यूज हैज हैव बिफोर सब्जेक्ट मींस आपने जो हैज या हैव है वो कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट से पहले, और जो बीन है वो कहाँ लगाना है, बीन आफ्टर सब्जेक्ट, बीन आफ्टर सब्जेक्ट. ओके, यूज हैज हैव बिफोर सब्जेक्ट
plus been after subject plus first verb plus ing plus question mark sign at the end. Here आपने क्या करना है, यूज हैड बिफोर सब्जेक्ट, मीन्स जो हैड है वो सब्जेक्ट से पहले और जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद, प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क साइन एट द एंड। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जो विल या शेल है वो आपने सब्जेक्ट से पहले लगाना है और जो हैव बीन है वो आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है, प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क साइन एट द एंड। गाइस आई वांट टू टेल यू समथिंग, ये गाइस आपकी रिवीजन के लिए चार्ट था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाया है। बट अगर गाइस आप लोग इसको एक्सप्लेनेशन इसकी पूरी देखना चाहते हो, इसको डीपली स्टडी करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है गाइस, आप हमारे चैनल द इंडिया रीड पर विजिट करो, इंडिया रीड्स पर। तो द इंडिया रीड्स में आपको हर एक टेंस की इंडिविजुअल वीडियो मिलेगी, आप किसी भी टेंस की कोई भी मेरी वीडियो बाय डिटेल जाके पढ़ सकते हो। तो गाइस आज हमारे 12 के 12 टेंसेस भी कंप्लीट हो गए और हमने 6 टेंसेस की रिवीजन मेरी एक वीडियो में कर ली और 6 टेंस की जो रिवीजन है वो हमने मेरी आज की वीडियो में कर ली। आई रियली होप दैट कि आपको ये जो टेंस हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बट गाइस अगर आपको फिर भी लगता है कि यहाँ पे या यहाँ पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, यू वांट टू आस्क अस समथिंग, ओके, तो गाइस मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। तो गाइस प्लीज मुझे मैसेज करने कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कीजिए, मुझे मैसेज करने कीजिए, मैं जैसे भी देख लूंगी आपको सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये जो लेक्चर है उसके बारे में भी प्लीज जरूर कमेंट करें, और अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज उसके बारे में भी हमें बताइएगा। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर हमारा जो चैनल है आपकी एजुकेशन में बहुत हेल्प कर रहा है, तो प्लीज गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।